Hi everyone, I am Kiran Machi from Jamshedpur, Jharkhand. Currently, I am pursuing a master's in mass communication from Jamshedpur Karim City College, and parallelly, I do some filmmaking work. I have done AD as an assistant director. I have done some camera work also in some short films. Yeah, that's my short introduction. Nice, very beautiful. It was very interesting for me when I knew about this 48-hour challenge because I never worked in such tight schedule. So it was very new for me, and because of this, I get opportunity to introduce about those stories which we don't know, which the public, the audience don't know about that. Yeah, that was my first initial approach when I knew about it. Perfect. So, Kiran, what struggles you faced while working that tight schedule? I mean, like what you felt in the process and in the way you did. Struggle basically finding locations because the topic which I chose it's very rare to find. We were searching for the villages where it is present there. So first is location. The second one is equipment. Some equipment we have to take from our friends. So we call them and we are waiting. When will our equipments come? So that's struggle basically. And the person who knows about this topic because there are few left. Okay, so how did you decide on the core theme or message for your document so quickly? Actually, I planned the strategy when we, yeah, I did it because when we get the theme, I told my team member that everyone think about something, anything. It could be anything. Just think about the theme and text me. We will choose from there. So we did that, and it was Jointo's idea, of course, which we made in the theme. So yeah, that's how we Oh, decided. That's how we start our work basically. Because our theme perfect. was selected. Okay, perfect. So the document, the whole documentary looks visually very rich. So can you just explain the back end? How did you, make it possible? Visually rich visual, right? Yeah, yeah. I think Jointo will answer it The much. visuals are very simple actually. Like Okay. composition also very simple. Like we following rules about cinematography and the location also was very good for the story actually. But Can it we? was not too complicated for us because when you analyze the film, it is quite simple. We use the matlab, what we say. We use the location itself. We didn't make anything. We didn't set up anything. We just go there and what we find, we just shoot that thing. Okay. Can you just, explain us the rules of, as you mentioned, so that we could. Normally the rule of third, which we are know about, and basic lighting, 3 point lighting and so that's it. Okay. Can we Can we know the background of you? Like, can you just brief us about what did you study? How did you get the experience and stuff? Okay, so we both are pass out from mass communication. Okay. So and we also work with our seniors who are pass out from FTII. So just work with them and do it for us. Okay. Okay. The same goes with perfect. Perfect. It's kind of the experience which we have learned from a few projects which we done earlier. Okay, perfect. But can we know more about your team? Like how many of them were there and who are the major key players and stuff? Okay, except us, whoever joined us, the 4 or 5 people, they are actually newcomers who actually Okay. want to explore this field. So Okay. we are uh, we also have a challenge to working with them, to Mhm. also teaching them and how the process was going on. Matlab, story wise, I am guiding and technically he was guiding Okay. to the whole team. And they were just cooperating with us. Like they were.
talking with people. They were what we say, and all the things. They were helping them. Okay, understood, understood. And the we actually love the song when the documentary ends. Can we know more about that song? Uh, Actually, it was very random when we went there, and the person which we are seeing in the interview portion in the The documentary, male person actually. the male person, Okay, uh, he plays an instrument which is and what we say. The name of the instrument is banam, a okay, traditional instrument of Santhal tribe. So he okay, plays it very well and he sings also. So when we go there and talk with him, they just randomly we say just play something or just sing something, and he just did it in post production. Actually, when we are putting the credit scenes, right? Also, before credit scene, we are putting the documentary, मतलब ढिंकी वाला portion, okay. right? Mhm. So हाँ फैमिली वाला पोर्शन जो होल फैमिली इज देयर इन द फ्रेम, राइट? सो वहां पे वो सॉन्ग एक्चुअली रैंडम थॉट आया कि इसको लगा के देखते हैं, लेट्स पुट इट इन Okay, एडिट, हाँ मतलब कैसे फील आ रहा है उसमें, कैसे लग रहा है, और okay. वो लग गया, वो अच्छा लग गया तो हमने रख लिया। Wow, nice. और वो म्यूजिक के साथ एक्चुअली जो एम्बियंस भी था वो ढिंकी का आवाज का, चावल Okay. निकलने का है ना, तो वो सब चीजें इतने ज्यादा लाइक कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे को, तो हम लोगों ने सोचा कि ये रखना चाहिए उसको। Very nice. Oh, okay. But, so it wasn't prepared, you know. नो नो नो, इट वाज इन प्रीवियस। Okay, okay. So it was made then and there. या या Wow, that's great. That's great. And actually, that created so much of impact. Like that ending with that song, that created a different visual, different emotion. That was great. And what camera and lens setup did you use and why? okay, the camera setup was Sony A7 IV, and the lenses are Sigma 84, sorry 85, and some of 35 Samyang. Okay, okay. And So, because 85 gives more depth of field, that's why okay. we put in the outdoor shoots, and some indoor shoots are like 35 mm. Mhm. Okay, okay. Great. And also, as we've seen your resume, the whole thing. So we've seen all short films and stuff, short films, and you've been working as an AD for other films. So we didn't see any documentaries in your resume. So is this your first documentary? yeah, it is my first documentary. Wow! Like how was it? Like how did you feel? Doing the first documentary. Like, did you feel anything about it? Uh, Actually, I am feeling very happy by making this film because I had learned many things. I Okay. met with new people, talked with them. Also, the thought process. Because in short film, we write the story and everything, we pre-planned it. But in documentary, it's all about what you think instantly, Mm-hmm. right? Sometimes it also happens when the location, when we get there, but people were not present there. So we just move out from there and went to another location. All are very hectic and kind of we have to still think very positive there. So it was very challenging but still very adventurous for me. And I am thinking to make more such documentaries, I think. We would love to see more of documentaries made by you because after seeing the donkey, we would definitely say we know how you direct and do it, so we would definitely see more of it. And you said tribal Santali people. Yeah. How did you convince them for the whole shooting the documentary and showing their tribe out? How did you convince them? Actually, we don't have to convince them because they are the people who want to tell their own stories. Okay, When we went there, they are very friendly with us. okay, Okay, they want to tell their stories to the world itself. So we don't have to we don't have much problem in talking with them. understood.
And as you coming back to the short film one, so uh, you've made many of short films, and you made your first documentary. So, did you see any difference between planning these two, or filming these two? Did you find any difficult? What difference did you find between these two directions? I think documentary is much difficult Okay, 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 okay. because it is for this 48-hour challenge. Mm-hmm. I'm talking about this only because I have made this, right? Yeah, 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 yeah. So in documentary, uh, wait. Acha, can I use some Hindi words? Yeah, please do. Yeah. It's completely fine. It's completely fine. Okay. Yeah, yeah. Fine. You go ahead. Okay. So in documentary, like we said, the story which we choose, hmm, uh, it's very new for us, especially, right? और डॉक्यूमेंट्री हम ऐसे चीज़ों पे बनाना चाहते हैं जो लोगों ने देखा ही नहीं है अभी तक। उन चीज़ों को मैं बाहर लाना चाहती हूँ। तो यही सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि लोग मिलते ही नहीं हैं। Hmm. ऑल्सो द पीपल जिनको नॉलेज है वो ओल्ड एज वाले हैं। अभी के मेरे जनरेशन हमने सिर्फ नाम सुना है डिंकी का, हम भी उसका वर्क नहीं जानते हैं। लेकिन फर्दर मेरे से जो छोटे हैं वो सुने भी नहीं है उसका नाम। तो Hmm. बहुत चैलेंज होता है ये सारी चीज़ों को आप लेके आना और साथ ही कैसे आप पोर्ट्रे कर रहे हो आगे, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी है डॉक्यूमेंट्री बनाना, आप कुछ भी नहीं दिखा सकते हो ऐसे ही, है ना? आप Yeah. एक सोसाइटी को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो एक सही तरीके से उसको आगे लेके जाना वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी के लिए मेरे को डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। Wow. So अभी ये पूरा होने के बाद, what do you think? Would you go shoot would you plan a short film or a documentary? आई एम प्लानिंग बोथ। Oh, okay, okay. Okay. मतलब usually after all these struggles, वो ज़्यादातर what do you want to shoot? Like, is it short films or documentary? I'm exploring things now. Okay. I'm not that kind of professional, right? I'm just exploring things. अच्छा, अच्छा. So I am writing some short story script also, and also I am thinking about that this documentary I want to exceed it more. Okay, okay. And in such a tight time constraint, how did you manage lighting? Did you rely on natural light or portable lights, portable setup? ओके, तो एक्चुअली वो चीज़ ऐसा था कि लाइक हम लोग ने डिसाइड नहीं किया था कि हम लोग नेचुरल लाइट पे शूट करें या फिर लाइटिंग पे। एक्चुअली हम लोग को जिस तरह से लोग मिल रहे हैं, वो जिस तरह का टाइम दे रहे हैं हमें, उस हिसाब से हम लोग फिर लाइक चूज़ कर रहे हैं कि लाइक हम लोग को करना है कि नहीं करना है। क्योंकि ऐसे था कि जो ओल्ड वुमेन का था वो नाइट में शूट हुआ है, जो मेन का था वो डे लाइट में शूट हुआ है। तो लाइक हम लोग का ऐसे टाइम बाउंडेशन भी था कि 48 आवर में करना है, तो लाइक हमें तो शूट करना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि एडिट भी करना पड़ेगा। Hmm. तो हम लोगों ने बस देखा नहीं, और अगर रात को पॉसिबल हो रहा है तो रात को शूट कर रहे हैं, सुबह हो पॉसिबल हो रहा है तो सुबह शूट कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा. मतलब did you डे में हम डे में वी यूज नेचुरल लाइटिंग एंड इन नाइट वी यूज सम लाइट्स। अब बहुत बेसिक लाइट्स थे, लाइक एक एलईडी पैनल था, टंगस्टन लाइट हम लोग यूज़ कर लिए, एक एलसी लाइट यूज़ कर लिए, बस इतना ही था उसमें। and also were there any specific challenges in locations counting or permissions during the short time window? ऐसे तो था एक्चुअली, लोकेशन या क्योंकि हम लोग ने जब फर्स्ट डे जब शूट करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे जो पीपल से बात करना था वो एक्चुअली अवेलेबल ही नहीं हुआ। लाइक हम लोग फिर पूरा का पूरा हाफ डे जाने के बाद 12 आवर्स नहीं 6-7 आवर्स जाने के बाद फिर हम लोगों ने रातों रात, मतलब शाम को शाम हम लोग फिर लोकेशन चेंज करके फिर दूसरे जगह शूट करना चालू कर दिया। How did you plan the music? Music was very good in the whole short film. And what about the flute music that starts when the documentary starts? So how did you plan that? वो तो वही आदमी बजाया था। the same thing, the whole music wala portion, the flute and the banam which we are talking about, the same person plays it.
Okay, the establishment of the song was really great. That was like it was perfect in the place. It blended with the starting intro. Yeah. Also, in part of editing, likewise, which software used and what all techniques you have utilized while editing, like color grading, such things. ओके, तो एडिटिंग सारा और कलर ग्रेडिंग सारा दाविंची में ही हुआ है। ओके, प्रीमियर प्रो में हम लोग नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि एक प्रीमियर प्रो में करने के बाद वापस एक्सपोर्ट करके दाविंची में ले जाओ, फिर वापस कुछ फेरबदल करना है, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि दाविंची में करके ही खत्म करें सारा चीज़। Any specific signatures that you want? I mean, establish करने को सोचा क्या आप उसमें? मतलब Likewise, in terms of color grading और the short specific editing के लिए, अभी music जो है आपके पास, उससे sync करने के लिए, I mean, how you did, I mean, how you choose those shots while doing editing? Is there any specific pattern for it? पैटर्न लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टैब्लिशमेंट शॉट जो है, स्टैब्लिशमेंट के बाद हम लोग ने लाइक मिड शॉट, क्लोजर शॉट, ये सब इमोशंस किस तरह से पता चलेगा एडिटिंग के थ्रू, मतलब शॉट्स के थ्रू भी, कि जो इंसान बता रहा है वो किस तरह से कनेक्टेड है अपने बातों को लेकर, अपने स्टोरी को लेकर। और ढिंकी का भी जो भी इंस्ट्रूमेंट था उसका भी बहुत सारे क्लोजअप इसलिए लिया गया क्योंकि लोगों को वो सब चीज़ें पता चले कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। तो लाइक ये ऑन द गो थ्रू में ही हम लोग ने डिसाइड कर रहा था, लाइक शूट के टाइम पे ही, कि लाइक इमेजिन कर रहे थे कि एडिटिंग भी कैसे जाएगा चीज़ें। तो लाइक एडिटिंग के साथ साथ हम लोग शूट के टाइम पे भी दोनों गो थ्रू करके शूट कर रहे थे, ताकि वो इजी हो हम लोग को फिर चूज करने के लिए कि लाइक क्या करना है कि नहीं। बेसिकली वन मोर थिंग एक और है कि जब हम लोग लोकेशन में गए थे, वहाँ पे ये हो रहा था कि हमारे पास जितना हम लोग को विजुअल्स मिल सके उतना हम लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हो सकता था कुछ क्लिप्स कम पड़ जाएं एडिट के समय में, तब हम क्या डालेंगे। कुछ होना चाहिए, जो अभी इन्होंने बात किया कि वो जो एनिमल्स का सीन्स है वो हम एक्स्ट्रा के लिए लेके रख रहे थे, बैकअप के लिए, कि कहीं छूटेगा तो हम लगा सकते हैं, राइट। वो चीज़ें हुई। और जो हम बात करें, जैसे कि इन्होंने बोला कि इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो जब भी वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो उनके रूट से जुड़ा हुआ है, उनके लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। तो जब हम इमोशन का बात करते हैं, वहाँ पे हम हमेशा क्लोजअप्स या ऐसा शॉट लगाते हैं। तो वो दिमाग में ऑलरेडी था कि जो हम दिखा रहे हैं वो इंसान कितना जुड़ा वो चीज़ से, उसको ध्यान में रखते हुए हमको दिखाना है। वो ऑलरेडी था, बस एडिटिंग के समय में हमने उन चीज़ों को फिर पुट किया ताकि वो एक लाइन में ठीक से दिखे। Yeah, Like, हम it is not only visually rich, but it also emotionally rich. हमारे हमारे साउथ इंडियन लोगों को ये डंकी ट्राइब के बारे में मतलब जान के ना, लाइक वी गॉट मोर इनसाइट्स। मतलब हमको पता भी नहीं था कि ऐसा होता है, ऐसे लोग रहते हैं, एंड एक पूरा ट्राइब इसके ऊपर डिपेंडेंट। लाइक दैट वाज अ विजुअली आई ओपनिंग थिंग फॉर अस। वी गॉट टू नो मोर अबाउट, मतलब दैट वाज योर मेन इंटेंशन दो, इट हाँ। डेफिनेटली वर्क। आपका जो इंटेंशन था वो बिल्कुल बाहर आ तो आया था। And were there any shots or any particular scenes that you wanted to include in the short film, but time constraint के वजह से you couldn't put them in? Were there any shots like that, or any particular script, anything? तो बहुत सारी छोटे छोटे एलिमेंट्स है, चीज़ें हैं जो हम, अगर वक्त रहता तो हम उनको भी दिखाते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था, तो हमें कट टू कट मतलब एक स्टोरी दिखाना पड़ा जिसमें डायलॉग ज़्यादा है लेकिन विजुअल्स कम है, काइंड ऑफ, राइट। क्योंकि बहुत डिटेल है विजुअल में, Hmm. अगर इन डेप्थ जाएंगे तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। जैसे होल मतलब ढिंकी का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है कि एक ग्राइंड मतलब पाउंडिंग प्रोसेस है, राइट। तो पाउंडिंग जो आप कर रहे हैं राइस का, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनका अभी बात की हम स्टोर करने का जगह, वहां से वो जब निकल के आ रहा है तो आपको समझ आएगा कल्चर डिफरेंस। हाँ। यहाँ पे तो चावल रखने का जगह वैसा नहीं है जो हम अभी यूज कर रहे हैं मॉडर्न टाउन्स में, ठीक है, वो तो है। राइट। तो वो और कनेक्ट हो पाता, वो ट्राइबल पीपल से आप और कनेक्ट कर पाते कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है,
जो औरतें हैं वो कैसे जा रही, इवन एक समय था ऐसा कि उस समय की जो हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं वहां पे औरत का गैदरिंग था ये, ओके। किसके घर पे ढिंकी होता है वो वहां जाते हैं 4-5 औरतें, अच्छा। वो बच्चे साइड में खेलेंगे और ये जाएंगी अपना सामान लेकर और वहां उनका एक कन्वर्सेशन हो रहा है, तो कितना प्यारा मोमेंट्स है ये सारी चीजें, राइट। वो तो है, वो तो है। तो वो चीजें मतलब टाइम की वजह से हम वो नहीं कर पाए। अच्छा, अच्छा। नाइस, नाइस। एंड ये आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री था, तो आप इसके पीछे डिड यू डू एनी रिसर्च ये करने से पहले कि हाउ डिड यू चूज दिस टॉपिक, की रिसर्च करे करके करे थे या हाउ डिड यू गेट इट? नहीं, ये टॉपिक पे पहले हमने रिसर्च नहीं किया था, जैसे मैंने बोला कि हम बस सुने थे ये वर्ड कि अच्छा, ऐसा कुछ होता है ट्राइब में अच्छा। जिससे राइस किया जाता है, कूटा जाता है, दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी नो अबाउट इट। ओके। एंड ये डॉक्यूमेंट्री आई सी, मतलब डिड यू रिसर्च ऑन हाउ डू यू फिल्म अ डॉक्यूमेंट्री, लाइक ये डॉक्यूमेंट्री के फ्रेम्स ऐसे होने हैं, ये इतने शॉट्स होने हैं, लाइक डिड यू नो रिसर्च अबाउट इट, कैसे डॉक्यूमेंट्री कैसे फिल्म करते हैं, या डिड यू डायरेक्टली स्टार्ट टू द कैमरा एंड स्टार्टेड फिल्मिंग? एक्चुअली तो इतना मतलब डॉक्यूमेंट्री पहले तो किए नहीं थे, तो लाइक थोड़ा पूरा जो भी सुना हुआ है या थोड़ा देखा बहुत हुआ देखा हुआ है, तो एक ट्रेडिशनल वे जो होता है हम लोग ने वो फॉलो कर लिया। बेसिकली वी अटेंडेड मेनी फिल्म फेस्टिवल्स जहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज देखा है हमने, ठीक है? तो वो देख के वो आइडिया मिला है कि ओके काइंड ऑफ हम ऐसा इसको ट्रीट कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को। ओके, बट इट वाज वेरी प्रोफेशनल। ऐसा नहीं लगा कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे थे कि एंड फॉलो कर रहे थे, बट हमको लगा कि हाँ, ये इनको तो पता है कैसे करना है, यू ऑलरेडी न्यू हाउ टू डू इट, बट एंड यू डिड इट इन द सेम वे। But we are eager to know ki, can you explain us the each step, of the process, from the time you saw that and you accepted the challenge, 48 hours start ho gaye till you won it. So can you just tell us the each step process ki kaise kare the, kaise start hua tha? ओके, सो जब इवनिंग में पहला मीटिंग रखा गया जहाँ पे टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ, मैं अपने टीम मेंबर को बोल के रखी थी कि सब तैयार रहना, जैसे ही टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है हम सोचना चालू कर देंगे। ओके, तो वो पहला चीज़ था। जैसे टॉपिक मिला सब सोचना चालू हो गए, सब रिसर्च करने लग गए कि क्या पे बना सकते हैं हम लोग, फेडिंग आर्ट क्या है। ओके, पहला चीज़। दूसरा, हमने प्लान किया था कि शूटिंग तो हमें करना है लेकिन एडिट के लिए भी टाइम रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, शूटिंग कर लेते हैं लेकिन एडिटिंग में टाइम नहीं मिलता है बोल के आप जो दिखाना चाहते हैं वो दिख नहीं पाता है। और एक चीज था कि इसका साउंड का भी एक चीज था, क्योंकि साउंड पे भी हम ध्यान नहीं दे पाते इतने कम टाइम पे, तो हमें ये तीनों की चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना था। मतलब बेसिकली क्योंकि साउंड को हर कोई बहुत लाइटली लेता है ना, कोई फोकस नहीं करते साउंड पे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक फिल्म का। बिल्कुल। दैट्स वाई वो हमारा ऑलरेडी सेट था टॉपिक, मतलब रिवेल होने से पहले कि किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। और जैसे ही वो चालू हुआ, फिर जैसे मैंने बोला कि लोकेशन में ही जो दिक्कत हुआ हम लोग को, क्योंकि हमें शिफ्ट करना पड़ा यहाँ से वहाँ, बहुत सामने नहीं था वो हमारे जगह से, अच्छा। तो उसी में ही दिक्कत हो। लेकिन पहला दिन जब शूट हुआ हमारा, उस समय ज़्यादा विजुअल्स हम लोग को मिल नहीं पाए, लेकिन रात को हमने क्या किया कि उन विजुअल्स को हम एडिटिंग में पुट किए ओके। टाइम बचाने के लिए, ताकि जो गैप्स मिल रहा है हम उनको फिल कर सके। दूसरा दिन ऐसा ना कि दूसरा दिन फिर हम पूरा एडिटिंग चालू करें, नहीं, जितना टाइम मिला है, भले 2 दिन के समय 2 दिन उठ जाओ लेकिन मेहनत कर लो। तो वो वाला चीज़ था, और मेरे पूरा टीम ने साथ दिया था, ऐसा कोई बात नहीं, हर किसी ने बहुत साथ दिया। और इसी के लिए वो एक कंप्लीट आप देख पा रहे हैं क्योंकि हमने टाइम बांटा हुआ था। वो तो परफेक्ट प्लानिंग था, वो तो मैं बता सकता हूँ कि दैट वाज परफेक्टली पुट। एंड आपका टीम को पूरा बता रहा है, इट वाज अ ग्रेट एफर्ट। जो भी पूरा इतना इतना पूरा एफर्ट लगा के जो करे थे, उसका फ्रूट तो मिल गया है, मतलब यू वॉन इट, यू वॉन इट। सो यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल टीम। अगर ऐसा टीम है तो ये डॉक्यूमेंट्री या कुछ भी बना सकते हैं। दैट इज डेफिनेटली देयर। एंड ऑल्सो वो ऑडियो सुन रहा था मैं, एंड हाउ डिड यू कैप्चर दैट ऑडियो, लाइक मतलब
एक्सटर्नल माइक सेटअप था कुछ? हाउ डिड यू मैनेज इट? एक बस छोटा सा रिकॉर्डर था जूम का, N4 था, अच्छा। और एक रोड का NTG था बस। और कुछ कुछ जगह में तो हम लोग बस फोन ही यूज कर रहे थे। आईफोन भी यूज, आईफोन का स्पीकर। मतलब उसमें नॉइस कैंसिलेशन वो सब था क्या, मतलब आईफोन में? नहीं, नॉइज कैंसिलेशन नहीं था, लेकिन जो अपना साउंड का जो बंदा था वो एक्चुअली लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन में है, तो लाइक वो उससे ज्यादा हेल्प हो अच्छा ऑब्वियस। किया था सब सारा सही कुछ। बंदा को चूज किया था आपने। तो ऐसा हो रहा था कि एक तरफ एडिटिंग भी चल रहा था, उसको एडिटिंग का कुछ पार्ट जितना हो रहा है एकदम कंफर्म, वो पार्ट उसको उठा के दे रहे हैं, वो उधर साउंड डिजाइन कर रहा है, बाकी सब, फिर बाकी एडिट जो कंप्लीट हो रहा है फिर उसको दे रहे हैं, फिर एक जगह फिर सारा कुछ आ रहा है। वाह। एंड आपको 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 आपका टीम को कैसे लगा, मतलब वी आफ्टर लिसनिंग कि अरे हम तो जीत गए, हम हमारा कंपटीशन में जीत गया हमारा वीडियो, सो हाउ हाउ उनका रिस्पांस कैसा था? लेकिन उनका रिस्पॉन्स ऐसा था कि उनका पहला टाइम था, और तो उन लोग इतना ज़्यादा हैप्पी थे, इतना ज़्यादा करेजफुल फील कर रहे थे कि अभी उन लोग का है कि अब वो इंडिविजुअल फिल्म बना रहे हैं। मतलब इससे पहले उन्होंने कभी फिल्म नहीं बनाया, वो बस जैसे सोशल मीडिया कंटेंट बनाते हैं वो लोग। अच्छा मतलब अच्छा। इंस्टाग्राम में आप देख सकते हैं ना, वहाँ पे वो लोग अपना, जैसे हमने म्यूजिक का बात किया, जो बंदा हम्म। म्यूजिक बना रहा है वो ऐसे इंस्टाग्राम पे डालता है। अच्छा। कभी फिल्म में ऐसे काम नहीं किया है, लेकिन क्योंकि वो जीते, पहली बार काम किया और जीते, उनमें इतना, मतलब वो इतना खुश हुए और इतना पॉजिटिव महसूस किए कि अब वो खुद फिल्म शूट कर रहे हैं। तो ये ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कि अब मतलब फिल्म मेकर की संख्या बढ़ गई है अभी। वही तो बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट्री के साथ बाद में उसको इम्पैक्ट पड़ेगा कि अभी फिल्म शूट करनी है। ये पूरे डॉक्यूमेंट्री में कौन से प्लेस में आपको बहुत टाइम लगा लिया, मतलब यू नो बाकी के पूरे शॉट्स के अलावा ये शॉट थोड़ा टाइम लगा लिया, ये पर्टिकुलर सीन ज्यादा टाइम लग गया करके? एक जो वुमेन वुमेन जो बैठी उनके वहाँ पे, क्योंकि लाइक एक तो लाइटिंग करना था वहाँ पे, और क्योंकि और फिर लाइटिंग, और एक टाइम ऐसा हुआ था कि करंट भी चला गया था हम लोग का वहाँ पे, लाइक ओके। वेट किए, तो लाइक करना पड़ा। इवन बारिश भी हो रही थी उस वक्त पे, तो तो बारिश हो रहा था, साउंड, तो साउंड भी हम लोग को देखना पड़ा था, तो उस जगह पे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। इवन जब बारिश भी रुक गया, लाइट भी आ गया, रात के समय शूट हो रहा था, तो रात के समय में इंसेक्ट का नॉइज आता है, तो हाँ हाँ एक हाँ। insect इतना जोर चिल्ला रहा था, जो साउंड रिकॉर्ड कर रहा है, बस लाइक क्या है कि इतना साउंड कर रहा है, हम ढूंढ रहे हैं उसको कि कहाँ पे है वो। ओके, उसको फिर उसको हटाया गया वहां से, फिर जाके वो रिकॉर्ड, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। अच्छा अच्छा, रात के टाइम पे मोस्टली था। It was like सबके सर पे चढ़ गया था। अच्छा, रात के टाइम पे इट वाज लिटिल। हाँ तो Yeah, okay. ओके। एंड विच पर्टिकुलर सीन के लिए यू फील वेरी प्राउड, टेक्निकली और इमोशनली, मतलब मूवी के बाद, फिल्म डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री के वाइज, एंड आल्सो यू फील इमोशनल कि या ये सीन बहुत अच्छा आया? लास्ट सीन, फैमिली जहाँ वाला पार्ट। फैमिली वाला, जहाँ मतलब पे 4 मेंबर दिख रहे हैं और वो ढिंकी मतलब कूटा जा रहा है, क्योंकि वो इसीलिए भी बहुत इमोशनल है, क्योंकि देखा जाए तो वो एक टाइम फेज को बता रहा है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी से, वो जनरेशन वाइज वो दिया जाता है एक इंसान से दूसरे इंसान को। जो बच्चे हैं वहाँ जो बैठ के हेल्प कर रहे हैं अपने मॉम डैड को, वो सीख रहे हैं, वो बचपन से वो चीज़ें प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो जो मोमेंट जब हमने कैप्चर किया ना, वो ऐसा फील होता है कि ये अभी क्यों नहीं होता है ये चीज़ें, तो बहुत इमोशनल था। एंड टेक्निकली वाइज, टेक्निकली ये लगा कि ये विजुअल बहुत अच्छा आया था, लाइक टेक्निकल वाइज आप बताओ। टेक्निकल वाला लाइक लास्ट वाला शॉट तो था ही जहाँ पे फैमिली थे, और एक और जगह था जहाँ पे जो औरत जो हाथ फेरती है ना डिंकी पे, तो लाइक वो भी एक बहुत इमोशनल टच है एक्चुअली फिल्म के लिए भी, क्योंकि वही एक जनरेशन है जो ये करके आ गए, और इसके बाद फिर वो और आगे नहीं बढ़ा, तो भाई लाइक एक्सपीरियंस था वो उन्हीं के साथ ही लाइक रह गया वो। और टेक्निकली इसीलिए भी क्योंकि वो जो मूवमेंट है,
आप देख सकते हैं कि लास्ट जो टच कर रही है तो वो कैमरा मूवमेंट भी है वो। अगर कैमरा मूवमेंट नहीं पकड़ पाया तो आप वो इमोशन नहीं पकड़ पाएंगे। I love that shot though. Like वो हट वाला shot ना, that was very emotional. वो तो बता सकते हैं हम लोग. It was definitely there. And the fact that ये पूरा technical और emotional सब thing आप 48 hours में कर पाए, that is the biggest challenge, and you've also made it. That is the biggest challenge you've already conquered. So मतलब how did you feel, मतलब ये पूरा whatever you planned तब 48 hours करने करने के बाद, how did you feel, मतलब before submitting it, ये आपको पता नहीं रहेगा ना कि ये क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा. तो how did you feel कि अरे did we just completely put in what all we wanted, or how did you feel? पहला तो ऐसा था कि जब 48 आवर में जब एक डॉक्यूमेंट्री बन सकता है इतने जी जान लगा के, तो लाइक ऐसा सपोज ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि भाई महीने में हम लोग कम से कम 2-3 फिल्म शूट कर सकते हैं, क्योंकि इतना पोटेंशियल जब 48 आवर में निकल रहा है, पूरे महीने कितने निकलेंगे. तो लाइक अपना पोटेंशियल भी पता चल रहा है कि लाइक 48 आवर्स में लाइक हम लोग इतना कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, है ना. सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेके या डायरेक्शन एस्पेक्ट्स को लेके हम लोग जो जो भी डिस्कस कर रहे हैं और जो आउटपुट निकल रहा है, तो लाइक वो सब चीज़ ऐसा था कि लाइक हम लोग और भी फिल्म बना सकते हैं अगर चाहे तो. एंड अगर आपको नो वी इफ वी एक्सटेंडेड 12 मोर आवर्स, तो क्या क्या इंसर्ट करते थे, और क्या क्या कितना अच्छा पॉलिश करते थे. वो हम लोग और ज़्यादा डिटेल पे जाते हैं वो सब चीज़ों की, छोटे छोटे चीज़ें के जो भी प्रोसेस की है इसके रिगार्डिंग, मतलब इस टॉपिक के रिलेटेड में, तो हम लोग वो सब चीज़ों को लेके फिर पॉलिश करते हैं, विजुअली भी, साउंड वाइज भी. मतलब अभी जो आप सिर्फ डायलॉग में सुन रहे हो, जो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको भले हम वॉइस ओवर या हो सकता है उसमें रख के आपको विजुअली ज़्यादा अच्छे समझा पाते हैं कि चीज़ें कैसी होती है। वो जैसे बता रहे हैं कि जो चावल जब निकलता है उस समय में जो रह जाता है, हाँ हाँ. वो चीज़ जिसको हम लोग हटा देते हैं, वो लोग क्या करते हैं उसको भी छान के, मतलब चावल बना के उसको ना खाया जाता था, लाइक काइंड ऑफ चपाती बना के भी खाया जाता था। अच्छा अच्छा. तो वो डायलॉग में है, लेकिन हम उसको दिखा नहीं पाए। ओके. वो वो जो डिटेल की जो हम बात कर रहे हैं ना, देयर आर मेनी थिंग्स, उसमें बहुत कुछ है जो दिखाया जा सकता है। I hand over to Sai now. Please go ahead. Yeah. So let's go with some generalized question. Like अभी तक तो आप बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स कह चुके हैं, and which made you proud, and this is the one is my short film that you're confident like ये मेरा है, this is me who shot बोल के. Okay, I have to name one short film which I had made. Yeah. Okay, it was Ipil Taras. Can you brief us more about that? Like, but Okay, so basically, the synopsis of this film is it is based on a rape victim. मतलब वो उस वक्त पे मैंने बनाया है जब कोलकाता केस हम सुन रहे थे, जो बहुत हाइप में था। उस वहाँ से आइडिया लेके मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा, और उस पे ऐसा है कि जिनके साथ होता है ये चीज़ें वो तो गुजरते ही है, लेकिन उनके पीछे जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं उनके साथ, द फैमिली मेंबर्स, राइट, उन पे क्या बीतती है, वो कैसे सोसाइटी को फेस कर रहे हैं, या इमोशनली कितना ब्रेक डाउन हो रहा है, वो फिल्म उसके ऊपर है। मैंने कोशिश की, वो मेरा एक तरह से देखा जाए तो पहला ऐसा शॉर्ट फिल्म है जहाँ पे मैंने लोगों को इन्वॉल्व करके काम किया है। बाकी जितना आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें मतलब मेरी ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई की मतलब पढ़ाई के दौरान मैंने फ़िल्म बनाया, वो सारी फ़िल्में हैं। लेकिन ये ऐसे है कि बाहर से खुद से मैंने ही प्रोड्यूस किया, मैंने डायरेक्ट किया, मैंने लिखा। तो ओवरऑल वो ऐसा है कि सब काम इवन मैनेजमेंट भी मैंने किया, राइट। तो और वो फ़िल्म में बहुत अवार्ड भी मिला है अभी, मतलब बहुत इन द सेंस आई एम सेइंग कि 2-3 अवार्ड 4 अवार्ड मिल चुका है उस फ़िल्म को।
तो वो एक ऐसा फिल्म है जो बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है मेरे से। Okay. मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन था एंड ये पूरा ये अपना डंकी शॉर्ट फिल्म में वी हैव दिस नरेटिव जो संताली में था, नॉट इन हिंदी, वो किसका था? वॉइस ओवर था। अच्छा, वॉइस ओवर। यस। वो हम लोग उसमें दे नहीं पाए थे। अच्छा, वॉइस ओवर में वहाँ पे सबटाइटल्स था। हाँ 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 हाँ। अच्छा, वो पूछ रहे वॉइस किसका था ना हाँ, एक्चुअली। वॉइस किसका था या? ओके, एडी का था। हमारे इस फिल्म में जो एडी कर रहे थे एक्चुअली, हाँ उसका हाँ हाँ। वॉइस है। अच्छा अच्छा, उनको तो उनको पहली संताली। बात जो एक्चुअली वो पूरा फिल्म फील्ड से है ही नहीं। ओ। ही इज द ब्लॉगर। ओके। हाँ, मतलब उनको पहले से संताली आता था, मतलब इट वाज। हाँ, वो संथाल में ब्लॉगिंग करते एक्चुअली हैं। हमारे टीम में जितने थे सब संताली ही थे। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड आपका रिज्यूमे जब देख रहा था, लाइक पूरा उसमें ज्यादातर गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के प्रोजेक्ट्स थे। कैन यू टेल अस हाउ डू यू यूजुअली कोलैबोरेट ऐसे ही विद गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स? गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मेरा ज्यादातर टाटा स्टील का है, अगर आप बिल्कुल, देखें। कॉलेज से एंड ही ऑल्सो प्रोवाइड हुआ उड़ीसा था। हम गवर्नमेंट का भी एक कुछ था। अच्छा, वो हमारे एक्चुअली सीनियर्स की हाँ, तरफ से। सीनियर्स के तरफ से था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब बेसिकली जो हमारे कॉलेज से पास आउट है, जैसे हमने बोला जो एफटीआई से पास आउट है, हम्म। तो उनके साथ प्रोजेक्ट में हमने एज अ टीम मेंबर काम किया। अच्छा अच्छा, टीम मेंबर ही आना चाहिए। एंड रेस्ट अदर्स, हाउ डू यू यूजुअली अप्रोच द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, मतलब कैसे मिलते थे आप आपको? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बेसिकली देखिए, अगर ऐसा पूछा जाए तो पर्सनली मेरा कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें मैंने एकदम डायरेक्ट किया हो, ठीक है? या तो मैं टीम मेंबर में हूँ या तो मैं एडी में हूँ। अच्छा, लेकिन ये यही हुआ है फिलहाल के लिए। चांस भी आना बहुत मुश्किल है ना, मतलब ऐसा एडी एज अ टीम मेंबर भी। हाउ डिड यू यूजुअली गेट इट, वेयर डू यू नो? You have to talk with people. You have to communicate with them with nicely, right? अच्छा अच्छा, मतलब किस, मतलब ये ऑब्वियसली ये सबको सबको आता नहीं है, सब कर नहीं सकते। जस्ट टेल अस कि वो लोगों को अगर पता जाएगा कि किससे बात करने से, कैसे बात करने से हमको, हाँ, वैसे प्रोजेक्ट्स में पोजीशन मिलेगा। ठीक है। बेसिकली कोई भी जब काम देता है या काम करने के लिए आपको बुलाता है, वो आपको ऐसे ही नहीं बुलाएगा, वो आपका काम देखेगा, अच्छा राइट? उनको दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आपने क्या काम किया है और आप उनके काम कैसे आएंगे, ये आप में होना चाहिए। ओके। ठीक है। और क्योंकि अगर आपका जान पहचान है वो अलग चीज़ है, लेकिन जब आप पूरे न्यू है और कोई पूरे न्यू इंसान के पास आप जाना चाह रहे हो, तो आपके पास काम होना चाहिए, एटलीस्ट सेल्फ मेड ही। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास बहुत मतलब बहुत हेवी कैमरा हो या इक्विपमेंट्स हो तब जाके, नॉट नेसेसरी। जिनके पास क्वालिटी है, मतलब काम का, या जिनके पास हुनर है, वो अपना कोई भी काम जैसे भी वो करे, वो सामने वाले को दिख जाता है। तो इसी के लिए वो आपको रखना पड़ेगा कि अगर आप उनके साथ भी काम करना चाहते हैं, आपको बताना होगा कि आप कैसे उनका हेल्प करेंगे, एज अ टीम मेंबर ही सही। हम्म। अदर देन दैट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो देयर आर फेलोशिप्स। ओह। या फेलोशिप्स के थ्रू भी बहुत सारी गवर्नमेंट की निकलती है, प्राइवेट की भी निकलती है, डिपेंड्स, वो करना पड़ता है। वहाँ पे अगर आप जाते हैं, वहाँ आप उन्हीं जैसे लोगों के मतलब क्या बोले, उन्हीं जैसे लोगों के साथ आप मिलजुल के रहेंगे, एटलीस्ट कुछ टाइम पीरियड के लिए सही। जब आपको पिच करना होगा अपना स्टोरी, तो आप वहाँ से भी कांटेक्ट बना सकते हैं आपके जैसे लोगों के साथ। तो देयर आर ऑप्शंस, वी हैव टू एक्सप्लोर देम। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सर, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिखाए थे शॉर्ट डॉक्यूमेंट, ये हमारा डिंगी, डॉक्यूमेंट्स। ये डिंगी दिखाए थे? यस। एंड व्हाट वाज देयर रिएक्शन? मेरे को अच्छी रिस्पॉन्स भी मिली है और कुछ ऐसी लर्निंग रिस्पॉन्स भी मिली है। जैसे कि अच्छी तो ओके, सब अच्छा ही बोलते हैं, है ना, जब कोई फिल्म देख रहा है ऐसा नॉन बैकग्राउंड वाले। हाँ लेकिन जो सीखने वाली चीज़ें हैं, वो जैसे हम अभी बोल रहे हैं कि इसको और कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं,
ये तो हुआ 48 आवर में जो हमने बनाया वो हमने दिखाया, लेकिन इसको हम आगे और कैसे दिखा सकते हैं लोगों के लिए, एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए। बड़े प्लेटफॉर्म इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि ये छोटा प्लेटफॉर्म, ऑफ कोर्स यहाँ से हम लोग को वो आगे हम लोग ऑप्ट किए हैं, लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन एक्चुअली बढ़ेगा, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, ये इतना छोटा डॉक्यूमेंट्री नहीं है कि ये 10 मिनट में सिमट सके, ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्री है। हम्म, सो वो लर्निंग मिला, और उसी के थ्रू ऐसा हुआ कि मैं और लोगों से बात कर पाए ये देखने के बाद ही, और ज़्यादा क्लैरिटी हुआ कि मेरे को किस तरीके से किसको दिखाना है ये चीज़। एंड कोई भी मतलब पूरे फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई भी पूछे कि क्या 48 आवर्स में इसे कैसे निकाल दिए इतना इतना बढ़िया डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री, कोई लाइक डिड यू गेट एनी ऑफ दीज रिस्पॉन्सेस? 48 में इतना अच्छा कैसे बन पाया? हाँ बिकॉज ऑफ माई टीम। हाँ, मतलब रिस्पॉन्सेस कोई 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 ऐसे बोले क्या फ्रेंड्स एंड फैमिली में कैसे करे ऐसा करके? फ्रेंड्स एंड फैमिली में हम्म, अ, सब मेरे को सबने ये बोला कि 48 आवर के हिसाब से अच्छा बनाया, ये बोला। कैसे बना ये किसी ने नहीं पूछा। oh wow, nice nice. And Sai, do you have uh, any other things to ask or no? वो उसको मैं बोलो। आज साई को पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। माइक ऑफ है, माइक ऑफ है। You're on mute. You're on. Sorry. Yeah. So I saw your dinghy. It was so awesome. So what felt like अभी आप जो dinghy का पूरा काम होने के बाद अब while you are posting it to us, so what you felt? अरे हो जाएगा ये, we'll get it, or anything such things like आपका confidence कैसा था? मेरा कॉन्फिडेंस पॉजिटिव था कि हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, बिकॉज हमें सीखने को मिला। इवन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, मेरा पहला वर्क था उनके साथ, कुछ के साथ तो मैं पहली बार मिली, ऐसा है। सो जीतना वो तो हो गया कि प्लस पॉइंट हो गया वहाँ पे, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, जो वो बनाने के दौरान मैं एक्सपीरियंस कर पाई लोगों के साथ। So इवन हाँ या अभी आप बोल रहे आप आपके टीम मेंबर्स को you met couple of people for the first time. तो आप कैसा कोऑर्डिनेट करें, हाउ यू मेड दैट बॉन्ड एक्चुअली? अभी जो आप डॉक्यूमेंट्री में पूरा टीम वर्क आप बता रहे थे अभी तक, आई आई फेल्ट लाइक आप लोग बहुत अच्छा फ्रेंड्स होंगे, इसलिए उतना अच्छा बॉन्ड, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्री कर पाए। बट हाउ यू मेड इट, लाइक टीम का पूरा कनेक्शन कैसा आया? बेसिकली मेरे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू बाकी से कांटेक्ट हो पाया। और जो हम बात करें मैनेजमेंट का, एक्चुअली हर कोई बहुत रिस्पॉन्सिबल थे। मुझे बस उनको काम बताना पड़ा कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, और वो उस हिसाब से वो कर किए। मुझे बस एक होता है, मुझे बस गाइड करना पड़ा कि मेरे को ये कुछ साउंड है, पर्टिकुलर साउंड जो आपको कैप्चर करना, रिकॉर्ड करना है, और वही सेम चीज़ आपका कैमरा के साथ हुआ। तो बस मुझे बताना पड़ा और वो खुद से वो चीज़ें करने लगे। Good to hear. And let's talk about our collab cut. I mean, how you felt with working with us and joining our channels, and कैसा लगा आपको हमारे साथ मिलके? अ, बहुत प्रिविलेज है हम, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक तो जीतने का मौका मिला वो तो है, लेकिन इतनी अच्छी फैमिली, लाइक कोलैब कर, ऑफ कोर्स मैं कभी फैमिली बन चुकी है, क्योंकि जब भी मैं व्हाट्सएप देखती हूँ कुछ ना कुछ वहाँ पे इतने एक्टिव लोग हैं। इवन सिर्फ मैं ही नहीं, क्योंकि मैं ही जुड़ी हुई हूँ अभी तक उस व्हाट्सएप के साथ, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अभी कुछ दिन पहले एक फोटो किसी ने डाला, एक एआई वाला डाला, और एक किसी ने कुछ स्क्रीनशॉट, मतलब एक मछली पिक्चर का था, मछली का था, लाइक फिश का था। तो वो सिर्फ मैं नहीं देखती, मैं लोगों को, मेरी फ्रेंड्स को भी दिखाती हूँ, यार ये सवाल है, तुम इसको देख के कैसे, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा क्या थॉट है, राइट? तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि जिन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट है, या मुझे जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है, वैसे ही लोग हैं। उनका बात इतना क्रिएटिव है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है मुझे।
तो बहुत अच्छा लगा मेरे को जुड़ के, और इवन हम आगे भी जुड़े रहेंगे ऑफ कोर्स। अभी कोलैब कल्ट में वी हैव फिल्म मेकर क्लब एंड रॉकबर्ट इनोवेटिव क्लब, और कैसा लगा उन लोगों से मिलके? सॉरी, रिपीट इट। अभी कोलैब कल्ट में वी हैव फिल्म मेकर का क्लब है, इनोवेटिव कट का रॉ इनोवेटिव क्लब है, ऐसा। आप उन लोग के साथ मिलके कैसा लगा आपको? आई मीन, हैव यू एवर कॉन्टेक्टेड समवन एंड वर्कड अलोंग विद देम और एनी इनसाइट्स फ्रॉम देम? यस। या आई एक्चुअली वो लोग से मेरा पर्सनली बात हुआ कुछ लोगों के साथ, लाइक एक आपका चंदू, राइट, एंड वन मोर, हम मैं नाम बोल रही हूँ उसका, लेकिन वो लोग ऐसे है ना कि वो लोग पर्सनली मेरे साथ बातचीत किए जब मैं विनर मेरा अनाउंसमेंट हुआ, तो दे वर नॉट लाइक कि यार वो लोग भी मेरे कंपटीशन में थे, लेकिन उनका इतना पॉजिटिव एक आया कि जो जीत रहे उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं उनका काम देख के, नॉट कि हम compete कर रहे उसको देख के। और एक ये भी हुआ कि जब चंदू का मेरे को नाम इसलिए याद है बिकॉज उनका ऐसा था कि एक डॉक्यूमेंट्री वो अभी शूट किए हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था उसमें वॉइस ओवर में, या फिर किस तरीके से मैं इसको नरेट कर सकता हूँ, थोड़ा हेल्प कर दो। एंड मैंने बोला कि मेरे से जितना बन पाएगा मैं करूँगी, ठीक है, और जब भी आपको होगा आप हेल्प मांग सकते हो। तो एक वो भी फ्रेंडशिप बन गया मेरा। तो वो सबके साथ ही वैसा है कि जिनको भी जरूरत है, जो भी जरूरत है, वो आके ऐसे बात कर सकते हैं। तो कम से कम उतना मतलब एक नए एक और फ्रेंड्स बन गए मेरे। तो यूजुअली हम कोलैब कर इसीलिए स्टार्ट करें क्योंकि हमारा एक ऐसा फैमिली बनाना चाहिए, हमको था ऐसा कि एक फैमिली बनाना चाहिए ऐसा, हर जगह ये मोनेटाइजेशन का हो गया। अभी अगर कुछ पूछ रहे हैं, अगर इवन हेल्प पूछ रहे हैं, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि हमको इतना लगेगा या यस, इतना चार्ज करेंगे, इतना चार्ज करेंगे। पर हमको ऐसा बनाना था एक फैमिली जो ऐसे आके हेल्प करेंगी, मतलब दे डोंट एक्सपेक्ट एनी मनी या समथिंग। वो आज आज आप चंदू बोल रहे थे, चंदू अपना बहुत एक्टिव मेंबर है। वो डॉक्यूमेंट्री शूट अपना खुद शूट करता है and हमारा खुद टीम मेंबर था हम जब एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे। तो ही इज अ लर्नर, ही इज अ लर्नर, अभी अभी स्टार्ट कर रहा है उसका जर्नी। अगर ऐसे लोग आके सीख सकते हैं कंप्लीटली फॉर फ्री, दैट इज दैट इज अ 1 लाख फॉर अस। हमको दैट इज व्हाट वी ऑल वांटेड। ताकि जो भी नए स्टार्ट कर रहे हैं, if they could learn something, they could take something from the team member, that is all we wanted। and वो एक इनिशिएटिव था रॉ एक्सकट, रॉ एक्सकट। सो आपको कैसे लगा वो इनिशिएटिव रॉ एक्सकट 48 आवर्स का डॉक्यूमेंट्री? वो इनिशिएटिव कैसे लगा हमको लैपकट? मैं तो चाहती हूँ कि ये ऐसे हर साल कम से कम किया जाए इसको, वो तो बिकॉज हाँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि वो बहुत मोटिवेट, जैसे मैंने बोला कि अभी मेरा ही टीम का आप एग्जांपल ले लीजिए कि वहाँ वो कम से कम उनमें तो आया तो कि हमें बनाना है, तो वो ईगरनेस उनमें जनरेट हो रहा है, लोगों में हो रहा है, और वो फिर आगे परस्यू कर रहे हैं चीज़ें। तो इसी के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, राइट। और इवन हम लोग जैसे कि हमने तो कम से कम काम किया हुआ है कुछ होने से भी, लेकिन ये जो टाइम फाउंडेशन का जो चैलेंज है ना, ये हम लोग को भी खुद को पुश करने में बहुत हेल्प करता है। हमने आज तक मतलब जितना सीखा वो लगा दो अपना, ऐसे हो जाता है। I guess there is a Da Vinci law, I guess। हम जितना टाइम कम रहेगा इतना टाइम हमको वर्क को एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर वो ये 1 मंथ का है या 1 ईयर का है, वो तो एक्सपैंड हो जाएगा। तो अगर 48 ईयर्स में लगाए तो या आज से मे भी बाहर आ जाएंगे ऐसा कुछ। एंड डू यू थिंक ये इम्पैक्ट गिरेगा लोगों के ऊपर रॉक्स कट? ऑफ कोर्स रहेगा, डिपेंड जो लोग हैं इससे जुड़े हुए, तो वो डिपेंड कर। इवन अभी जैसे कि कुछ कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, राइट, लोग आके जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। ये जो फैमिली है, जैसे कि अभी इस बार में कम से कम अगर 10 लोग पार्टिसिपेट किए हैं, जैसे लोग जानेंगे वो फैमिली बढ़ता जाएगा, नंबर्स बढ़ते जाएंगे, राइट, लोग और इकट्ठा होंगे और बनेंगे, जो ऑलरेडी सोचा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए कम से कम कोलैब कर, तो इसी के लिए। एंड
आपको कुछ लगा क्या, मतलब अगर ये इनिशिएटिव में कुछ ऐड करा जाए तो अच्छा रहता था, or else any small tweaks that could be a big hit? Hmm, और anything very और कोई चैलेंजिंग स्मॉल इंस्ट्रक्शन सो दैट वो और चैलेंजिंग लगे, क्योंकि अगर अभी आप जो भी बोलने वाले हो वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम जो आप 48 करने वाले हो उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे आप। बेसिकली सारा कुछ तो परफेक्ट ही था। लाइक अब चैलेंजिंग अगर ये होगा कि लाइक टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग आएगा, तो क्या है कि लोग और इंटरेस्ट से बनाएंगे और चीज़ें और अच्छे से निखर के आएंगी। क्योंकि इस बार का क्या हुआ, जो जितने पार्टिसिपेंट्स थे, पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि आप एक कंक्लूड करके फिर हम एक टॉपिक डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर मान के चले जो ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने टॉपिक दे दिया अपने तरफ से कि आपको इस टॉपिक पे करना है, ना कि उनसे पूछ के, क्योंकि हो सकता है उनके दिमाग में जो चीजें है वो उनकी नॉलेज में है, हम्म, इसलिए वो बोल पा रहे हैं। हम्म, राइट, तो हो सकता है उनसे रिलेटेड उनके पास टॉपिक ऑलरेडी हुआ हो कुछ लोगों के पास, इट कुड बी। इसी के लिए जो ऑर्गेनाइजर्स है वो ही अगर एक अचानक उन्होंने कुछ टॉपिक दे दिया, थीम दे दिया, वो सबके लिए चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि वो किसी ने नहीं सोचा है। हाँ हाँ हाँ, ये डेफिनेटली अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड डू यू नो एनी टॉपिक्स, थोड़े टॉपिक्स मिल सकते हैं क्या, सो दैट नेक्स्ट टाइम के लिए हम यूज कर सके। नेक्स्ट टाइम के लिए एनी रैंडम टॉपिक। ओके, गिव अस 2 minutes। Yeah, take your time, take your time. ओके, तो ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है, डॉक्यूमेंट्री अगर हुआ, तो लाइक आप लोग जो टॉपिक्स दोगे वो तो है, अगर फिक्शन पे जाते हो तो लाइक ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ कुछ एलिमेंट्स रखा है, जैसे लाइक मनी हो गया, ठीक है, या कुछ कोई प्लांट भी हो गया। प्लांट हो गया, तो ये सब चीज जैसे इंक्लूड होना चाहिए वो फिल्म में। ओके, या तो कोई इंसान उस जैसे अगर मान लो कि हम टॉपिक मनी रख रहे हैं कि ये मनी जो चीज है, जो एलिमेंट है, ये आपकी फिल्म में होना चाहिए, तो कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो एक मनी के ऊपर ही एक फिल्म ही बना दे, है ना। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, या दैट्स अ वेरी गुड, या हाँ हाँ, ये तो है, ये करेंगे। और कुछ आइडियाज? ये अब तो जब आएगा तो लाइक हम लोग अब इसका डिस्कस करेंगे, या हाँ, क्योंकि प्लीज प्लीज बताइएगा। डिसाइड हो जाएगा तो फिर लोग देखेंगे ही भले, हाँ हाँ हाँ, वो तो है, वो तो है। सोच के रखेंगे कि वो आ सकता है, रेडी रहना पड़ेगा, मतलब हाँ, ये अभी अभी ये वाला पार्ट तो रिलीज नहीं होगा, हम वो तो बिल्कुल विल मेक श्योर ये वाला पार्ट तो रिलीज नहीं होगा। जब जो रिलीज हो जाएगा ना तब रिलीज होगा ये वाला पार्ट की, हाँ ये बोले थे लोग करके। एंड ऑल्सो अभी आपको पता ही है, तो सो वी आर रिलीजिंग सम कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्मार्ट फिल्म मेकिंग। ठीक है, स्मार्ट फिल्म मेकिंग में वी वांट टू शो द पीपल आउट देयर की वेरी कम इक्विपमेंट से भी हम वेरी गुड शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री ले सकते हैं। आइदर यू नो इज इट आईफोन से ले लो, यू नो वेरी मिनिमल इक्विपमेंट। या वी वांट द इंस्ट्रक्शन हियर इज, आप बहुत मिनिमल किसका जितना मिनिमल इक्विपमेंट रहेगा उनको अच्छा, यू नो विल बी यूजिंग दैट एज अ मेट्रिक टू जज द डॉक्यूमेंट या शॉर्ट फिल्म। तो we're thinking of that, but we would like to know कि मतलब अभी रिसर्च ये फेज नहीं है, बट इट वुड बी ग्रेट अगर आप कुछ ऐड कर सकते हो कि यू नो स्मार्ट फिल्म मेकिंग में ये हो सकता है, ये कर सकते हो। देखिए, जो मिनिमल इक्विपमेंट्स का हम बात कर रहे हैं, है ना, उसमें और मेरे को नहीं लगता कि एड ऑन हम कर सकते हैं, क्योंकि वो जो वर्ड है वो एनफ है, ओके, समझने के लिए वो वर्ड एनफ है। हाँ, हमको तो लगता कि लास्ट ये तो रॉ एक्स 248 में हमारा टाइम कंस्ट्रेंट था, हम्म। इधर हम सोच रहे कि वो इक्विपमेंट कंस्ट्रेंट रखेंगे, एक मिनिमल इक्विपमेंट। हाँ, तो सोच रहे कि अगर कुछ और कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं ये another पे, तो इसीलिए सोच रहे कि डू यू हैव एनी इनसाइट्स जो ऐड कर सकते हैं या जो बहुत चैलेंजिंग बनाया है इसको, दैट यू नो लोगों को वो बेसिकली उनको इंस्पायर होना चाहिए कि
ये बहुत कम इक्विपमेंट से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको बहुत बड़ा कैमरा चाहिए, पूरा हम्म, लाइट सेटअप चाहिए। तो वी वांटेड टू मेक श्योर कि बहुत अच्छा एक हो सकता है। सो डू यू हैव एनीथिंग लाइक आईफोन से ही शूट करना पड़ेगा या दिस पर्टिकुलर गिम्बल से ही करना पड़ेगा? डू यू हैव एनी सजेशंस? लाइक जैसे कि अगर जिसके पास अवेलेबल नहीं है ये सारे जो महंगे इक्विपमेंट्स है, तो अगर वो एक अगर बहुत पुराना अगर स्क्रीन टच फोन भी है जिसका कैमरा सही से काम भी करता हो, उससे भी फिल्म बना दे तो लाइक बहुत अप्रिशिएबल होगा ये। हाँ, वही तो हमारा इंटेंशन भी वही है। हाँ, we have to see कैसा करेंगे। And what do you think about film cinematography? Sorry, mobile cinematography. हाँ, बहुत बढ़िया होगा क्योंकि लाइक हर किसी के पास फोन है, तो लाइक अगर बनाना चाहेंगे तो बना लेंगे, क्योंकि बड़ा हैवी इक्विपमेंट में होता है क्या है कि अगर हम लोग आउटडोर शूट कर रहे हैं तो कोई ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर सकता है। लाइक पुलिस भी आके कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग को, लाइक परमिशंस चाहिए होंगे बड़े सेटअप्स के लिए। छोटा फोन होगा, कहीं भी हम लोग घुस सकते हैं, इजीली हैंडेबल है, और लाइक चार्ज भी 2-3 पावर बैंक्स ले लो, आराम से काम चल जाएगा, हाँ, वो तो है। है ना। तो हाँ, क्योंकि हैवी इक्विपमेंट में वही होता है कि भाई 10-15 बैटरीज लेके घूमो, उसका क्योंकि बजट बढ़ता है, जितना ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट होगा उतना ज़्यादा बजट होगा। हाँ, हाँ। और फ़ोन सबके पास है, अगर आईफोन अगर ग्रुप में 4 जन आईफोन कैरी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे एक ही आईफोन में शूट करेंगे, बारी बारी भी अगर ख़त्म होता है तो भी लाइक ईजिली होगा, क्योंकि एडिटिंग पर्सपेक्टिव में भी अगर जाएंगे तो लाइक एक तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। ये हम्म। सब तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट अगर ऐसे चैलेंजिंग करते हैं तो लाइक 2 अलग-अलग कैटेगरीज भी रख सकते हैं, एक मोबाइल वीडियोग्राफी फिल्म का और एक लाइक प्रोफेशनल थोड़ा सा या एमेचर वाला, ये भी कर सकते आई थिंक सो मोबाइल में ना कैटेगरी मत रखिए कि कौन सा फोन से करना है। अच्छा, एक्चुअली नोट दिस। तो क्योंकि हर किसी के पास आईफोन नहीं है, इवन आई डोंट हैव आईफोन। ओके, हाँ, दैट लेकिन इज। मुझे नहीं है ना, हाँ, तो हाँ। मेरे लिए हो जाएगा मुश्किल। अगर फ़ोन है, फ़ोन आप कर सकते हैं कंसीडर कि ठीक है, आपके पास जो फ़ोन अवेलेबल है आप करिए। आप फिर बाद में आप उसको जज करने के समय में आप कैटेगराइज़ कर सकते हो। अच्छा, अच्छा। एंड आप मोबाइल फिल्मोग्राफी में ये बात करने वाले अभी, तो ये बजट कॉन्स्टेंट तो बिल्कुल हो जाएगा। सो व्हाट अबाउट द डिस्क स्पेस? मतलब आपको पता ही है, अगर कोई भी फ़ोन में इतना भी शूट करेंगे तो उसका स्पेस थोड़ा रैम स्पेस या रोम स्पेस वो फुल वो होता रहेगा, उसको मुश्किल रहेगा। डू यू नो एनी ways to challenge that particular issue? हैं। जो जो स्टोरेज वाला जो प्रॉब्लम आता है, Storage वाला प्रॉब्लम। तो इसमें एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, लाइक हार्ड ड्राइव अगर पॉसिबल है तो हार्ड ड्राइव हम लोग ओटीजी भी आती है, तो हम्म। लाइक अभी जितने भी सारे जितने सी टाइप फोन है तो सारे में ओटीजी सपोर्टेबल होगा, तो हम्म। बस शूट करो और ड्राइव में बस पुटअप करते जाओ ऑन द गो शूट के टाइम पे, लाइक वो इजी हो जाएगा उनके स्पेस के लिए भी। हाँ, हाँ, हाँ। पर अगेन बजट कंस्ट्रेंट है, तो जुगाड़ सबसे बेस्ट जुगाड़ जुगाड़, या जुगाड़। बेस्ट जुगाड़ होगा वो। एंड थोड़े लोग सोचते हैं कि मोबाइल फिल्म मेकिंग इज वेरी चीप। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? चीप कहने से मतलब किस तरह का, मतलब कौन से कॉन्टेक्स्ट में? मतलब अरे ये तो मोबाइल फिल्मोग्राफी है, इसमें तो अच्छा नहीं आएगा। मतलब देखेंगे भी नहीं उसमें, उस डॉक्यूमेंट्री में क्या है। वो बस बोलेंगे अरे अगर फोन फोन में फिल्म कर दिए तो वो लोग बोलेंगे अरे अच्छा फिल्म में अच्छा कैमरा से करके बताओ तब देखेंगे। ये क्या बच्चों के जैसा फिल्म मोबाइल से करके लेके आ गए हो। एक्चुअली जो टेक्निकल प्रोसेस है उसका जो एक्सपेक्ट है, वो सब चीज़ पे अगर ज़्यादा ध्यान दे तो हम लोग फ़ोन से भी अच्छा, क्योंकि अभी का ऐसा है कि बड़े बड़े हॉलीवुड फिल्म भी फ़ोन से ही बन रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो हम लोग भी वो चीज़ इनिशिएट लेंगे तो क्या है ना कि हम लोग अपना भी इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। रेंट एक तो रेंट नहीं करेंगे, अपने जो भी है उससे कर सकते हैं, हाँ, है ना। हाँ। और जितना हम लोग प्रोसेस पे बिलीव करेंगे तो मेरे हिसाब से फिल्म अच्छा ही बनेगा। हम्म। और क्योंकि ये स्टीरियोटाइप जो माइंड है कि फ़ोन से वीडियोग्राफी करना, फ़ोटोग्राफी करना बहुत चीप है,
तो लाइक अगर हम लोग ये चीज फोन से करके अगर दिखाएंगे तो आई गेस वो स्टेरियोटाइपिक जो माइंड है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, हमारे हमको जो जो यूजुअली करते हैं उनको तो रहेगा कि अरे जो भी इक्विपमेंट है, इट्स नॉट द कैमरा और द लेंस, इट्स डायरेक्टर एंड द टीम बिहाइंड इट। वो तो हमको पता है, बट यू नो व्हाट कैन वी डू विद द जनरल ऑडियंस ऑफ द प्रोड्यूसर? ऐसे लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हैं? बेसिकली द थीम, द टॉपिक विच दे आर चूजिंग, वो मैटर करता है। अगर आपका स्टोरी तगड़ा है, डजेंट मैटर आप किस चीज़ से शूट किए हो। वो जैसे हम बात करें इमोशन पकड़ना, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो ड्रामा हो, है ना, चाहे वो हॉरर हो, जो वो दिखाना चाहते हैं वो ऑडियंस तक कनेक्ट होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। अगर वो हो गया, उसके बाद फिर कोई नहीं देखेगा कि आप कैसे शूट किए हो। इवन जो मैंने सबसे पहला जो फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया था, वहाँ पे एक यंग फिल्म मेकर थे जिन्होंने जीता था वहाँ पे अवार्ड, और वो फिल्म से मतलब मोबाइल से शूट हुआ था। क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, क्वालिटी की जो हम बात करें, क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तगड़ा है। तो वो जैसे इन्होंने भी बोला कि वो जो स्टीरियोटाइप माइंडसेट हम ब्रेक कर सकते हैं। अरे जिसके पास जो है वो उससे बना रहा है। अगर स्टोरी अच्छा है, वो आगे गया, लोग जुड़े, वो इक्विपमेंट दिलवा देंगे। हाँ राइट, मेरे को जो दिखता है वो तो सामने आए पहले। हाँ, वही तो या जो सिनेमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं, राइट, तो अगर उसने कैमरा से ही कर दिया, क्वालिटी भले जैसा भी हो, लेकिन दिख तो रहा है, एंगल्स तो दिख रहे हैं, टेक्निक तो दिख रहा है, जितना उसने सीखा है वो मैटर करता है। आई गेस हम तो अभी टाइम स्टीरियोटाइप तो छोड़ दिए थे, ये थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट लगा के। अगर अब हम अभी फोन स्टीरियोटाइप ब्रेक करने में लगे पड़ेंगे तो वो तो करेंगे। एंड फिल्म, आप भी फिल्म स्टूडेंट हो, मतलब फिल्म स्टूडेंट्स कर रहे हो, तो इफ एक फिल्म स्टूडेंट को ये पूरी मोबाइल फिल्मोग्राफी पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, ये ये वाले रूट में, ये वाले रूट में आने के लिए क्या क्या स्टेप्स क्रॉस करने पड़ेंगे, वो क्या क्या चीज़ें करने पड़ेंगे? कहाँ तक आने के लिए? मतलब टू जस्ट स्टार्ट देयर फिल्मोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी जर्नी, उनका वो एक बार रूट मैप क्या रहेगा उनका, लाइक एज ए फिल्म स्टूडेंट, क्या रूट, क्या प्रोसेस, क्या स्टेप्स, किधर से स्टार्ट करना पड़ेगा उनको, सो दैट वो फर्स्ट स्टेप करने से विल स्टार्ट हिज जर्नी। सबसे पहला तो फिल्म को समझना ओके, सबसे रहता है। अच्छा, मतलब आप फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं, आपको जुड़ना तो पड़ेगा। अगर वही दिमाग में नहीं आएगा, आप आगे कैसे बढ़ोगे। हम्म। अगर कोई फोटोग्राफी की भी हम बात कर रहे हैं, कोई फोटो क्यों खींचे, उसको खींचना अच्छा लगना चाहिए। वही हम्म। चीज है सिनेमा के साथ। आप सिनेमा क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पसंद है, तो वो जुड़ाओ सिनेमा के साथ। उसके बाद फिर आगे उसके बाद फिर जैसे स्टडीज होती हैं फिल्म को लेके, सारे रूल एस्पेक्ट सब पढ़ना होगा। जो भी चीज़ें छोटी छोटी बेसिक्स, बेसिकली यही कि छोटी छोटी बेसिक्स नहीं पता होगा तो लाइक हम लोग फिल्म नहीं बना पाएंगे। हम्म। हम्म। तो हम लोग को बेसिक्स पहले क्लियर करने पड़ेंगे खुद को। मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर रहा था जो जो सब रिसर्च करते ही रहेंगे, मतलब एग्जीक्यूशन कभी कर नहीं पाते, बोल देते कि ये मेरे को ये नहीं आता, ये आने के बाद करूंगा, ये आने के बाद करूंगा। मैं उन उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर एग्जीक्यूशन करना है, लाइक ऑन द ग्राउंड आके एग्जीक्यूशन करना है, व्हाट दे हैव टू डू, मतलब किधर से स्टार्ट करना है उनको। दे हैव टू मोटिवेट देमसेल्फ। That क्योंकि is really often, yeah. कोई नहीं आने वाला आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम बात करें, मेरा एक कॉलेज का फिल्म जो पहली बार हम दोनों ने साथ में काम किया था, और हमारे जो टीम थे, हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक कैमरा था, अच्छा, कोई साउंड इक्विपमेंट नहीं, कुछ नहीं, टीम भी नहीं, ठीक है। स्क्रिप्ट क्योंकि बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा, जो आइडिया दिमाग में है, दिमाग से उसको बाहर पेपर पेन में लाना पड़ेगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हमारे पास कैमरा था, जिसके पास फोन है, आप फोन लीजिए, उठाइए और बाहर निकलिए शूट करने के और लिए। अगर ऐसा इक्विपमेंट्स अगर अवेलेबल नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि कैमरा से ही करना है, तो वैसे लोगों को भी खोजना भी पड़ेगा। हम्म,
वो जुगाड़ वाला ही बात है कि लाइक जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ अगर करना आपको लिखना पसंद है, आप लिख रहे हैं और आपको फिल्म बनाना है, लेकिन आपको कैमरा वर्क नहीं पता, तो आप वैसे दोस्त बना लीजिए जिसको कैमरा वर्क बहुत पसंद है। हाँ और अगर दोस्त नहीं बना सकते, आप यूट्यूब में देख के सीखिए। मतलब करना पड़ेगा, हाँ। आपको घुसना पड़ेगा चीजों में। आप आपको आपको कैसे आपको कब लगा कि ये सब करना, एंड हाउ डिड यू स्टार्ट इट, हाउ डिड यू एग्जीक्यूट इट? आप दोनों के लिए क्वेश्चन, हाउ डिड यू स्टार्ट इट? मतलब यू लोग कैसे सीखते रहेंगे एक पॉइंट के बाद, आपको कब लगा, एंड हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? जब मैंने पहला फिल्म वर्कशॉप अटेंड किया, फिल्म वो वर्कशॉप। 72 आवर फिल्म मेकिंग वर्कशॉप, वहाँ पे मेंटर्स थे अच्छा। और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि कैसे होता है सिनेमा, क्या होता है। वहाँ एक्चुअली पता चला सिनेमा के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा। अलग फिल्म्स देखी वहाँ पे, पहली बार फिल्म्स देखी उस तरीके की जो यहाँ की फिल्में नहीं हैं। वहाँ पे एक कनेक्शन फील हुआ मेरा। और उसके बाद वहाँ से आया कि अरे यार अब तो बनाना है। वो वर्कशॉप के बाद अब खुद का एक फिल्म बनाना है, वो चढ़ गया दिमाग में। फिर आके जैसे मैंने बोला कि लिखे, पता नहीं अच्छा लिखे खराब लिखे वो नहीं, वो कोई गाइड करने के लिए नहीं है वहाँ पे। वो बस रैंडमली लिखा और चलो शूट करने निकलते हैं, शूट करने निकल गए। लेकिन जब एक प्रोडक्ट बन के आया, तब जाके मैं रिव्यू ले पाई लोगों से, और तब फिर कुछ और सीखी कि नहीं इसको इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो वहाँ से फिर सीखे, फिर एक फिल्म बनाए, फिर वहाँ इम्प्रूव हुआ। तो ये प्रोसेस है, लेकिन शुरू आपको खुद से करनी पड़ती है। आप कैसे स्टार्ट किए? मेरा ऐसा था कि लाइक स्कूल टाइम से मैं ये कैमरा वर्क में मेरे को इंटरेस्ट आने लगा था जब मैं क्लास 9th में था। और ऐसे ही दोस्त लोग के साथ हैंग आउट करने टाइम ऐसे ही हम लोग जस्ट वीडियो शूट करते थे वगैरह। तो एडिट पे भी इंटरेस्ट लगा था मेरे को। एंड जब मैंने ग्रेजुएशन करना चालू किया था, तब लाइक मेरा स्ट्रीम ही अलग था एक्चुअली। ग्रेजुएशन में भी स्ट्रीम अलग था मेरा। मास कॉम से पहले मैं ज्योग्राफी कर रहा था, तो लाइक अच्छा। अचानक से मैंने स्विच कर दिया था मास कॉम। लाइक नहीं, अब उसमें इंटरेस्ट है तो जाना है। तो हाँ। लाइक वो मेरा पीक पॉइंट था कि फिर मास कॉम से जाने के बाद फिर ये जर्नी शुरू हो बात है। वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि इनिशियल की फेज की जो हम बात कर रहे हैं, इनिशियल फेज ही है जहाँ पे या तो आप बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं या तो बहुत वीक बन सकते हैं। हम्म। अगर आप स्ट्रांग बन गए तो आप आगे जाके बनाओगे फिल्म, ठीक है। वहाँ बहुत लोग आएंगे, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा उस वक्त पे। हो सकता है कि जैसे कोई कैमरामैन ना मिले आपको, तब आप क्या करोगे? आपको खुद से खुद को मोटिवेट करना सीखना पड़ेगा वहाँ पे। बाद में तो मिल जाएंगे, जब आपका काम सक्सेस हो जाता है तब 4 लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन शुरू के समय में कोई नहीं रहता। बस। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। गया। एंड वही था हमारे पास से हमारे गुलाब कल से पूछने वाले जो भी क्वेश्चंस थे। अगर आपको कोई इफ यू वांट टू सजेस्ट एनी एडवाइसेस फॉर द अपकमिंग, सो मैं बोलने वाला था दैट इज इट फ्रॉम आवर एंड। मतलब हमारे कोलैब कल से ये वाले क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन हमको जानने थे। एंड अगर आपके तरफ से इफ यू हैव एनी एडवाइसेस फॉर द अपकमिंग फिल्म मेकर जो भी अभी भी स्टूडेंट्स है, so do you have any advices for them, or do you have anything to share with them? आने वाले फिल्म मेकर लोग से यही आशा है कि अगर आप लोग सोच रहे हो फिल्म बनाने का तो बना लो, क्योंकि जितना टाइम गुजरेगा आप बस सोचते ही रह जाओगे। क्योंकि इनिशिएट नहीं लेंगे तो फिर लाइक हम लोग वहीं का वहीं रह जाएंगे। लाइक हम लोग ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो लाइक बनाना बहुत ज़रूरी है फिर। और गुलाब कल की तरफ से जब और आगे भी ऐसे चैलेंजेस जो आएंगे और भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स आएंगे, तो होपफुली लोग और ज्वाइन करें ताकि वो अपना भी पोटेंशियल जान सके, है ना। हाँ हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल होगा, वो कॉम्पिटिशन्स तो बिल्कुल होंगे। हाँ। तो वो तो बिल्कुल होगा। एंड by any chance, Sai, do you have any questions left? So I don't have much. Probably I got many answers and so much inspirational story of mainly in terms of Pinky. लुकिंग फॉरवर्ड यू गाइस, आपके आपके पास है बहुत कुछ देखने को। सोचो ऐसा डॉक्यूमेंट्रीज एंड शॉर्ट फिल्म्स एंड इंस्पायर अस मोर। या And thank you so much for coming, guys.
आप इतने इतने लेट तक, सॉरी, Thank you so much for inviting us. इनवाइटिंग क्या होता है? आप तो ऑब्वियसली विन कर, हमको चांस मिलना चाहिए आपसे बात करके वो प्रोसेस जानने के लिए। तो इट वाज हर अपॉर्चुनिटी, वो हमारे लिए टाइम देके नो आगे थोड़ा बात करने के लिए। दैट वुड, जो भी आप बात करें, वी वुड लव टू शॉर्ट क्लिप इट एंड यूज इट फॉर आवर कंटेंट। एंड जो भी आई डेफिनेटली फील, जो भी आप बोल रहे थे, जो भी एडवाइस दे रहे थे, that will definitely impact जो भी upcoming filmmakers थे वो लोग को, they'll definitely get impacted over it. So thank you so much for coming, and it was lovely talking to you guys. Thank you so much for coming in. Okay. Okay. Bye bye. 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 Thank you.